Some revision. You want a Revision. re-explanation? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so today I will first re-explain and then I will do the other work. Okay. Wait, huh? Morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. I think I have last Good explained. morning, ma'am. Good morning, beta. You are able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I was planning to take MCQ for this chapter today, but today, as you said that in the last class, that's why I'm taking this. If time is left, I will start the Kahoot because I have prepared both. What happened? Wait. Okay. So you are able to see this. This is electric current and its effect chapter. Okay. So No, ma'am. yes. Oh, ma'am. Then No, ma'am. electric Ma'am, class File 7. Explorer is visible. Ma'am, nahi dikh rahi screen. Okay, wait. I will explain it. Open it again and then I will share. Wait, huh? Wait. Yes, ma'am. Okay, wait, huh? Wait, beta. I will just open and. Okay. Now are you able to see? Wait. Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Electric current and its effect. This chapter actually I have explained it already, but if it is problematic, then I will explain it again. So in this chapter, basically what you have to learn the simple thing. This chapter is actually divided into two parts. One part you have to learn in class 7th and another part you have to learn in class 8th. Okay. Half of the part you will learn in the class 7th and another part you will learn in the class 8th. In class 7th, you will learn about the heating and the magnetic effect, and in the class 8th, you will learn about the chemical effects. Okay. And in this chapter, basically basic things which you should know, that it is what are the how the electrics, what are the components of an electric circuit, how to diagrammatically represent an electric circuit, and what are the heating effect and what are the magnetic effect. That's all. That thing you only have to learn. Okay. So and any circuit basic components क्या रहता है? What are the electric circuit? कोई any electric circuit if you are making, you will require cell, you will require bulb, you will require switch, and or you can require a battery or a wire. Okay, so clear है? So these are the symbols of a cell or a battery. Okay, cell, electric bulb. How it is? ये symbol क्यों है? अब suppose if I am asking you MCQ, what this symbol represents? Electric cell, electric bulb, or switch. So you will tick mark in the electric cell. So you should remember the basic symbol of this particular इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. तो पहला चीज आपको ये याद रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये सिंबल्स आप याद रखना कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ यू विल रिप्रेजेंट द स्क्रीन screen, switch on and off position, and the battery and the wire. Okay, clear है? These are the symbols. Okay, clear? Done? Should I move forward? Should I move further? Yes, ma'am. Okay. Now next, you can see that अब आपको पता चल गया क्या है? What are the electric components and the symbol? So what are these actually components? अगर हमको, I will keep you all in a mute position. Okay.
Okay. Electric component, what are the electric components actually? Electric component, what are what? Electric components, if somebody is asking what are, I showed you the symbols of electric component, but if anybody is asking what are the electric components, you go and define it. So you will tell that electric components are the elements which helps the electric circuit to functioning. अगर कोई एक component भी missing होगा तो circuit function नहीं करेगा. So what is the component? Electrical components are what? These are the elements which help the इलेक्ट्रिकल सर्किट टू वर्क ऑन स्मूथली. अगर कंपोनेंट है तभी तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट स्मूथली फंक्शन करेगा. ओके, क्लियर है? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम है इलेक्ट्रिसिटी को की सप्लाई को कंटिन्यूअस रखना. ओके, क्लियर है? और इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तब हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के एग्जांपल है, चाहे आप यस व्हाट हैपेंड? Yes, मैंने पढ़ा दिया है, but some people are saying that they want the re-explanation. That's why I'm explaining it again. Otherwise, I was planning to take the revision today. Okay, clear है? मैंने revision का इसका explanation करा दिया है, फिर भी आप बोल रहे हो करके मैं इसको re-explain कर रही हूँ. आप in the next class I will not repeat it. I will just take the revision only. Okay, clear? अब electric circuit it is what? Electric circuits are what it is. We are having so many electric circuit in our home. That switch we are having, that it is also an example of electric circuit जिसके जरिए हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई स्मूथली होता है और हमारे घर में वेरियस मोटर और बल्ब और फैन ये सब प्रॉपरली फंक्शन करते हैं. ओके, नाउ द सेल. अब सेल जो है वो सेल इज डिफरेंट फ्रॉम बैटरी. सेल इज a single cell like this yellow color. एक सेल येलो कलर वाला सेल लूंगी तो मैं वो सेल है, लेकिन अगर मैं सेल्स को कॉम्बिनेशन लूंगी तो वो बैटरी हो जाएगा. ओके, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. आपकी टॉर्च, अगर घर में टॉर्च रहता है तो हम उसमें सेल डालते हैं. सेल, अगर आपने सेल का 2 सेल को जोड़ दिया या 3 सेल को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा. ओके, क्लियर है? सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल. बैटरीज आर मेड, और यू कैन से द बैटरीज आर द कनेक्शन ऑफ द सेल्स. ओके, क्लियर? अब ये डायग्राम कैसे बनाना है? आपको सिंबल्स, कंपोनेंट्स के सिंबल, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, स्विच का सिंबल आपका पता है ऐसा है, एंड सेल का सिंबल भी आपको पता है. बस आपको उसी ये जो सिंबल है उसी को इस डायग्राम के फॉर्म में जोड़ देना है. जैसे जैसे ये जुड़ा वैसे वैसे इसको जोड़ते जाना है. ये सेल का सिंबल आपने बना लिया. ये सेल से कौन जुड़ा है? बल्ब. तो बल्ब आपने जोड़ लिया. बल्ब से कौन जुड़ा है? स्विच जुड़ा है, तो इसको आपने स्विच में जोड़ दिया. एक सर्किट डायग्राम आपका बन गया. ओके, दिस वे यू आर मेकिंग द सर्किट डायग्राम. ओके, क्लियर है? यू कैन स्टिल म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट. ओके, अब ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो रहेगा बेसिकली क्या है आपका, इसमें आप देख सकते हो बल्ब है, सेल है, और सेल, और यू कैन ऑल्सो हैव अ बैटरी इफ यू आर टेकिंग मोर देन वन सेल्स कनेक्शन. ओके, एंड इट इज हैविंग अ स्विच. अब स्विच का ये जो बीच का लाइन है, ये इफ इट इज नॉट कनेक्टेड, इट इज द सर्किट इज इन द ऑफ पोजीशन, दैट मींस इट इज द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट एंड इट इज एन इनकम्प्लीट सर्किट. बट इफ द स्विच इज कनेक्टेड टू दिस 2 डॉट्स, that means ये line जो है connected रहेगा, that means switch is in the on position and there is a supply of electricity in the circuit and it is called as complete circuit. Okay, ये देखो यहाँ पे लिखा है open circuit. When the key is switched off or the open circuit is said to be open circuit as it is incomplete. जब मैंने बोला ना आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा, जब ये जो switch के बीच का जो line है that will be not connected. Okay, clear? एंड क्लोज्ड सर्किट मतलब अभी ये एग्जांपल है किसका? क्लोज्ड सर्किट का. क्यों? अभी बीच का लाइन कनेक्टेड है, मतलब स्विच जो है कनेक्शन ऑन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कंप्लीट सर्किट. ओके, क्लियर है? एंड दिस इज द व्हाट सर्किट डायग्राम अबाउट सेज. ओके, और इसमें जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? Why this, after supply of electricity, why this particular bulb is glowing? Okay, this bulb is actually having a tungsten filament. Okay, you can see that this bulb is having a tungsten filament. Okay, this tungsten filament will get heated up when you supply electricity, and because of heating up, metal है, heat हो रहा है, heat होने से क्या होगा? ये जो है glow करना चालू कर देगा, and that's why you can see the bulb in the glowing
form. Okay, is it clear? And that's why if this particular filament breaks, the circuit of the bulb will break also, and there will be no heating up, and the bulb will not glow. इसलिए जब भी आप फ्यूज्ड बल्ब को देखते हो तो इसका अंदर का फिलामेंट जो रहता है वो टूटा रहता है. ओके, क्लियर? अब ये जो है, ये बड़ा सा जो ग्लास का जो ग्लोब दिया गया है हमको, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया ताकि ये जब हीटिंग अप हो और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन के लिए. ओके, जितना रिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी. और ये हमको एक प्रोटेक्शन के लिए भी है ताकि अगर इसका एक्स्ट्रा हीटिंग इफेक्ट होता है और कोई माल फंक्शनिंग हो जाता है तो ये जो ग्लोब है, ग्लास का ग्लोब है, ये हमको प्रोटेक्ट करेगा. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? किसी को कोई इश्यू है? एनीबॉडी हैविंग एनी इश्यू? No, ma'am. ना? No, ma'am. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? अब ये तो देख के समझ में आ गया कि बल्ब क्यों जल रहा है. बिकॉज ये जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है वो गर्म हो रहा है और ग्लो कर रहा है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी शोइंग हीटिंग इफेक्ट. ओके, ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है. अब ये अब ये कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि क्या आपने मटेरियल क्या लिया है. मेटल लोगे, अच्छा मेटल लोगे जिससे विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो ज्यादा हीट होगा, ज्यादा ग्लो करेगा. लेंथ ऑफ द वायर, अब जितनी बड़ी वायर लोगे उसको उतना ज्यादा समय लगेगा हीटिंग के लिए, उतनी जल्दी ग्लो कर नहीं पाएगा. थिकनेस ऑफ द वायर, अब जितना मोटा वायर लोगे तो हीटिंग इफेक्ट उतना कम प्रोड्यूस होगा. ओके, क्लियर? अब ये जो है, अब आपका जो अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो ये सारे अप्लायंसेस है जो आपके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं. चाहे आपका सिंपल सा आयरन ले लो या रूम हीटर ले लो या what you can say kettle ले लो. These are all based on the heating effect of the electric current. Even the hair dryer which you are using in your home. Okay, clear? And this what it is producing, what heating effect of the electric current. अब ये जो है यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होगा यहाँ पे, when this all are working on the heating supply of electricity, or we can say that heating effect of electric current, or each appliances will be requiring different types of size or length of the wire for getting heated up. हर एक अप्लायंस का हीटिंग रिक्वायरमेंट अलग है, तो उनका जो इलेक्ट्रिकल वायर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगा. ओके, each appliances is having a different requirement of electricity. That's why the wire which is required for their heating up is also different. Okay, so what happens if there sometimes when there is a supply of over fluctuation in the electricity, okay, fluctuation in the electricity or over voltage, or you can say suddenly high amount of electricity is passed, the wire which is making the circuit will break. Okay, some wires can break. Yes, मैम, पिछले वाले स्लाइड में चौथे नंबर पे कुछ लिखा था. हाँ वो आएगा बेटा, रुको. स्लाइड में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सब वही स्लाइड है. ठीक है, दिखा रही हूँ, रुको. एमसीबी वाला ना मैं लिख रहा हूँ. एग्जांपल दिया था क्या हीट कंटेन, जो हीट से चलता है उसके एग्जांपल दिया, तो उसमें चौथे नंबर पे कुछ लिखा था. वो कौन सा चीज है क्या लिखा था बेटा? मैम? ये गाइस क्या है? गीजर लिखा था, वो आईएसआई मार्क में है. वो ये नहीं है. ओके, अब ये जो फिलामेंट है, सॉरी फिलामेंट में आ गई मैं वापस, सॉरी. अब ये जो वायर है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रिक्वायरमेंट अलग है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो वायर है उनकी भी रिक्वायरमेंट अलग होगी. ओके, और कुछ वायर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, सडनली अगर हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया तो इक्विपमेंट को बचाने के लिए व्हाट विल हैपन, द वायर विल मेल्ट. अब वायर मेल्ट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर वायर को हम क्या बोलेंगे? फ्यूज बोलेंगे. we will call it as फ्यूज. ओके, क्लियर है? अब ये तो ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट तो हो गया मेरा, आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया था. नेक्स्ट, हाँ, अब एक ये तो है. 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड. ओके, छोटा बच्चा लाने
हाथ धो ले और फिर खाने का। अभी तो धो के आया है। इधर उधर छुआ नहीं ना सोफे में। Okay, now coming back, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो है, अब ये जो फ्यूज का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या होता है फ्यूज। फ्यूज का काम क्या होता है, जब वही काम होता है कि इफ देयर इज अ fluctuation of electricity and if there is suddenly high supply of electricity, the wire which is present in the fuse, you can see the wire. Okay, ये वायर देख रहे हो, this wire will melt and break, and since it will melt and break, the circuit will stop working and there will be no supply of electricity. हर लाइट और हर बल्ब और लाइट में फिलामेंट, बल्ब में फिलामेंट होता है बेटा, लेकिन एलईडी वगैरह में फिलामेंट नहीं होता, इसीलिए उसको यूज किया जाता है आजकल। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग लॉन्ग लाइफ। ओके, और बल्ब्स आर हैविंग फिलामेंट। आप छोटे छोटे बल्ब, मिनिएचर बल्ब्स भी लेके आओगे तो भी उसके अंदर भी यू विल सी द फिलामेंट, बट यू विल नॉट सी द फिलामेंट इन एलईडी। एलईडी इज नॉट वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन से फिलामेंट। ओके, वो फिलामेंट की हीटिंग आप पे काम नहीं करता। Okay, coming back to the fuse topic, this fuse are what is a, आप अपने घर में भी देखोगे फ्यूज का जो मेन जो स्विच बोर्ड रहता है जहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्विच ऑन करते हो, वहां पे ये लगा होगा, और ये भी लगा होगा और एमसीबी भी लगा। वो मॉडर्न फ्यूज है, नया फ्यूज है, और ये पुराने टाइप का फ्यूज है। यस बेटा, व्हाट हैपेंड, टेल मी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। संस्कार, फ्यूज Yes. उड़ कैसे, हाँ, फ्यूज उड़ जाता है तो वो कैसा दिखता है, या फ्यूज फिर उड़ता नहीं है, इन द सेंस बेटा उड़ता नहीं है। वो उड़ने का मतलब ये है कि वो खराब हो गया। खराब कैसे होता है, ये ब्लास्ट से नहीं होता बेटा। आपको देखेगा, कभी कभी देखोगे ना फ्यूज के ऊपर काला काला हो जाता है, जैसे कुछ गर्म कर दिया गया। वो गर्म कैसे, हाँ वो शॉर्ट सर्किट होता है। वो एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ है और उसके अंदर का ये जो वायर, वही तो बता रही हूँ, ये जो वायर दिख रहा है आपको, बेंडेड वायर दिख रहा है, यू कैन सी दिस बेंडेड वायर। ये वायर मेल्ट होके, क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जा रही है सडनली, तो अगर वो सप्लाई अगर अंदर चला गया, सर्किट के अंदर चला गया, तो क्या होगा, सर्किट पूरा उड़ जाएगा और आपके घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई ये, हाँ क्या कर सकते हैं, हाँ हाँ, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बचने के लिए ही फ्यूज का क्रिएशन किया गया है, ताकि ये शहीद हो जाए, सर्किट बच जाए। इन लोग का काम ही है सर्किट को बचाना। ओके, इन लोग का काम ही है सर्किट को बचाना, इसलिए घर में फ्यूज लगाते हैं। मेन स्विच बोर्ड जहां से हम लोग कनेक्शन ऑन ऑफ करते हैं ना, वहां पे देखना, या ये भी लगा होगा, और एमसीबी दिखा रही हूँ आपको, ये भी लगा, ये देखो, ये भी लगा होगा। ये देखा हूँ मैं। हाँ, तो ये नया है, नया फ्यूज है, और ये पुराने मॉडल का फ्यूज है। तो आप कुछ जो गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ, हाँ उसमें देखोगे ये पुराना टाइप का फ्यूज ज्यादा। ओके, ये इसका काम ही है कि देयर इज अ हाई सप्लाई, वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, वही तो होता है कि सडनली वोल्टेज में फ्लक्चुएशन, और अगर अचानक से ऐसा गया इलेक्ट्रिसिटी, तो घर का फ्रिज टीवी सब उड़ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये स्विच जो है, ये जो इसका अंदर का वायर है, वो मेल्ट होकर टूट जाएगा। मेल्ट होकर टूट जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट सप्लाई टू द सर्किट, और अगर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा तो सर्किट बच जाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, फ्यूज। ओके, एंड दैट इज, यस मैम डाउट है पिछले साइड में 10th नंबर में। ये मैम 10 10 ये, हाँ बोलो, ये है 10th स्लाइड। यस मैम। तो ये जो फ्यूज है मैम, इसका सिर्फ वायरिंग टूटता है कि कुछ और भी खराब हो जाता है? इसका मेन काम, ये जो ऊपर जो सिरामिक देख रहे हैं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए। ये जो सिरामिक जो लगा है ना ऊपर, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, कि बाई चांस ये देखो, ये कनेक्शन ये वायर तो किसके बीच में होगा, मेटल रॉड्स के बीच में ही तो कनेक्शन होगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। ओके, अब इसके ऊपर क्या ये लगा है, सेफ्टी के लिए लगा है, ताकि अगर बाई चांस हम जो ठीक करने आते हैं ना, जिनको फ्यूज लगाना है, अगर उसमें बाई चांस अगर कुछ बचा भी है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमको हार्म ना करे, इसलिए ये ऊपर का लगा हुआ है। बाकी इसका कोई अदर कोई मीन्स वो नहीं होगा। आपको बस इसी से पता, या दो तरीके से पता चलता है। अगर बहुत ज्यादा तरीके से खराब हुआ है, तब आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काला काला, मतलब गरम के जैसे दिखेगा, अदरवाइज वो भी नहीं दिखेगा। आपको खोल के देखना पड़ेगा इसका फ्यूज उड़ गया है कि नहीं उड़ गया है। और आपको पता कैसे चलेगा, आप इस वायर को देखोगे, आप चेक करना उसको, आपको सिंपल ऐसे फिट करने का है बस। उसको अगर आप खोलोगे तो उसको ऐसे खोल के देखोगे, अगर आप उसका वायर चेक करना, अगर टूट गया है तो फ्यूज खराब हो गया।
ठीक है। तो फिर तो हम ये वायर वापस जोड़ के तो यूज कर सकते हैं उसे। नहीं, एक फ्यूज एक ही बार में यूज होगा। आप कनेक्शन करवाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। वो कनेक्शन इतना इजी भी नहीं है यहाँ पे। वो आप करवा सकते, आपको इतना है कैपेसिटी तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते, यू कैन डू। ओके, यस मैम। इफ यू आर हैविंग दिस प्रॉपर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये जो है सर्किट में क्या हो रहा है, सर्किट अब ये प्रॉब्लम आ रही थी क्या सर, एक बार फ्यूज टूटा तो हमारा बार बार यूज नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, नैतिक आई टोल्ड यू ना कि नॉट ऑल बल्ब्स आर हैविंग फिलामेंट। ओके, आपका एलईडी जो है वो जो है वो क्या है आपका, इसमें फिलामेंट में काम नहीं करता, वो गैस भरा रहता है उसके अंदर। ओके, ओके, यस 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 पार्श, करेक्ट बोला। फ्यूज उड़ा निकाल दोगे तो हाँ, पिक्चर वगैरह पे देखोगे कि जो है लाइट गायब करने के लिए क्या करते, फ्यूज निकाल देते। फ्यूज उड़ा दोगे तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा घर का बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ओके, अब ये जो सर्किट है ये फ्यूज का है, ये फ्यूज जो है उड़ जा रहा है, तो व्हाट इट इज, द सर्किट इज नॉट वर्किंग। हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक नया तरीके का फ्यूज आया, ये एमसीबी जिसको बोलते हैं। एमसीबी बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा सडनली इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड होगा, ये जो रेड स्विच है ये ऑटोमेटिकली उस वेट के कारण क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑफ पोजीशन में चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अचानक से अगर ओवरलोड हुआ तो इस इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि ये जो आपका ये जो स्विच दिख रहा है ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन में चला जाएगा और आपका सर्किट काम करना बंद कर देगा, एंड यूर सर्किट विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड एंड योर फ्यूज विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड। ओके, तो आजकल घरों में यही फ्यूज है, यही वाला यूज करते हैं, नॉट द ओल्ड वन। ओके, क्लियर है? हाँ, मैम यस। जब मतलब मैम ये अलग अलग कलर्स में आता है तो मैम उसका कोई रीजन है कि ऐसे ही? नहीं, कलर्स का कोई वो फर्क नहीं पड़ता इससे इतना। ओके, कलर्स ये तो स्विच के लिए है बस, अंदर कोई वो नहीं है। और हाँ, हम लोग बताते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी झेल सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 63 एम्पियर्स। ओके, तो वो लिमिट बताता है कि ये सर्किट जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी बेयर कर सकता है, यानी कि आप कितने लिमिट तक इलेक्ट्रिसिटी झेलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं झेलेगा, क्योंकि घरों का रिक्वायरमेंट अलग होता है और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलग होता है। व्हाट इज एलसी? याशिता, what you're telling LC? It is LED, not LC. मैम भी से ना घर की एलसी गिर गई है करके। मैम इट इज एमसील। MC, LC नहीं सुना मैंने बेटा, MC सुना है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, MCB को बोलते हैं। मेरे को इतना पता है, LC मैंने सुना नहीं, मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा LC क्या होता है। मैंने MCB इसका शॉर्ट फॉर्म में लोग जैसे बोलते हैं ना, MC गिर गया, MC गिर गया, तो यही है, ऐसा है। ठीक है, LC भी बोले। मैम एमसील भी बोलते हैं बहुत सारा लोग। क्यों लगाते हैं? हाँ, इतना सारा क्यों लगाते हैं? देखो ये जो डिपेंड करता है। देखो कुछ घरों में क्या रहता है, बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ओवरलोड होता है, तो वो घर में आप देखोगे कि एक से ज्यादा, दो बड़े बड़े बंगला जिन लोग के घर में रहते हैं, वो लोग दे आर हैविंग मोर देन वन स्विच बोर्ड एंड दे आर हैविंग दिस मोर एमसीबी, क्योंकि वहां इतने अप्लायंसेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड ज्यादा होता है। ऐसे ही सेम इंडस्ट्रीज में अगर जाओगे, वहां पे तो छोटा एक एमसीबी का काम नहीं चलेगा ना, वहां पे ज्यादा एमसीबी यूज होंगे। मैम हमारा तो छोटा सा घर फ्लैट में मैम, मैम उसमें तो हमारे घर में 30 स्विचेस हैं ऐसे एमसीबी। 30 स्विचेस है एमसीबी है? यस मैम। हाउ? मेन स्विच में? मेन स्विच में? यस मैम, मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, मेरे में भी एमसीबी बहुत सारे हैं। आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा यूज करते होगे बेटा, टीवी, क्या बोलते हैं, जैसे हायर इलेक्ट्रिसिटी। खुद का घर नहीं है तो अच्छा, हम लोग सिर्फ फ्रिज। ये देखो बेटा, अब हो सकता है कि कोई एक, कोई क्या करता है, एक ही फ्लैट, मतलब जैसे एक ही मेन कनेक्शन से पूरे कनेक्शन जुड़े रहते हैं, है ना, एक ही कनेक्शन से मेन कनेक्शन रहेगा, उसी से पूरे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जाता है, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं ना कि मेन कनेक्शन एक जगह रख के बाकी पूरा हर रूम में या हर उसमें तो आप तब आपका एमसीबी ज्यादा लग सकता है बेटा, ये हो सकता है। हाँ,
ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? डिब्बे? हाँ, वहां पे उसी के बाजू में लगे रहते हैं। हाँ मैम, वो एसी की वाल के बाजू में लगे रहते हैं। अच्छा, उसमें स्विच ये- बोर्ड में बोल रहे हो? हाँ, उसका फंक्शनिंग मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, देखना पड़ेगा मेरे को उसको खोल के। मेरे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी डेप्थ में गई नहीं मैं मैम मेरे को पता है वो क्यों यूज आता है। क्या यूज होता है बेटा? मैम वो ना, ताकि ना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट उसमें ना पहुंचे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, और हमारा खराब ना हो। अच्छा, देखना पड़ेगा वो मेरे को भी। और कोई फंक्शन है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। बड़ा वाला दोनों है। अच्छा, ये- गुड। वो ओके, बड़ा वाला में पता चला मेरे को, बिजली बिल वाले भैया है ना, वो वहां पे मीटर में कुछ करते हैं। अच्छा, ओके। अब वापस आते हैं अपने बल्ब में। अब बल्ब जो है वो फिलामेंट टूट जाने के बाद काम नहीं कर रहा था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अनदर ऑप्शन, दैट इज CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, ये यहाँ पे क्या होगा, इट विल फिलामेंट, हाँ इट इज कंटेनिंग इलेक्ट्रोड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फिलामेंट है, ये जो आपको LED दिख रहा है, नॉर्मल बल्ब के अंदर क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, वो गर्म होगा तो चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। इसके अंदर क्या लगा रहेगा, इलेक्ट्रोड। जैसे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं ना, वैसी मतलब व्हाट हैपेंड। मैम इलेक्ट्रोस क्या होता है? एक मिनट मैम, तो MCB तो बहुत बड़ा और अलग। Parsh, what you are telling, I am not getting. हर एक इक्विपमेंट का MCB मैंने क्या बोला? हाँ बोल। बहुत बड़ा रहता है ना। हाँ, तो अब बेटा बताओ कि एक लिफ्ट का कितना डेली इतना ज्यादा उसको लगता है, और लिफ्ट के लिए लिफ्ट को ऊपर मेटल का इतना बड़े बॉक्स को ऊपर नीचे ले जाने के लिए ऊपर से इतना वेट को कैरी करना है। बहुत सारे लोग चढ़ते हैं लिफ्ट में एक बार में, आप देखोगे नॉट, कभी कभी तो टूस के एक्स्ट्रा 5-10 लोग भी चढ़ जाते हैं। तो इतना वेट कैरी करने के लिए और उसको चलाने के लिए आपको छोटे अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी नहीं ना बेटा, यू आर विल बी रिक्वायरिंग हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वह उसको उस इलेक्ट्रिसिटी को बेयर करने के लिए लायक भी क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे ये क्या सिर्फ 63 एम्पियर्स का है MCB, ये देखो लिख रहा है, इसका लिमिटेशन है, तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, तो उस हिसाब से फ्यूज का रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, उतना इलेक्ट्रिसिटी बेयर भी तो करना चाहिए। अब एक पतला सा वायर लेकर वाला फ्यूज लगा दोगे तो वो तो छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन में तोड़ जाएगा वहीं पे, isn't that? That's why according to the requirement we will make. हाँ, अब आप बोल रहे थे इसमें आते वापस CFL में इलेक्ट्रोड्स होता क्या है? इलेक्ट्रोड्स मतलब 2 टर्मिनल, जैसे हर बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जिनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना, एक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। ओके, जैसे आप सेल वगैरह में भी देखोगे, टॉर्च वगैरह में भी सेल लगाते तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है कि नहीं? तो सर्किट के अंदर भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और जिनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके उस सर्किट के अंदर मतलब कुछ भी सब्सटेंस, जैसे गैस है तो उस गैस के तक पहुंचाना, अगर लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर पहुंचाना, अगर सॉलिड है तो उस सॉलिड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। तो इलेक्ट्रोड्स आर द टर्मिनल्स व्हिच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो CFL है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, और ये इलेक्ट्रोड्स का काम है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये CFL में है, CFL के अंदर क्या गैस है, वो हीटिंग अप होगा। अब हीटिंग होने के बाद क्या होगा, हीटिंग होने के बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये CFL के अंदर ना कोटिंग लगी हुई है, यानी जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। रिफ्लेक्शन, यस मैम जो वो आप बोले स्विच बोर्ड, मैम उसके बाजू में 3 मतलब ब्लैक कलर के डायल्स क्यों रहते हैं मैम, फैन के बटन के तरह? पेन का बटन के जैसा? मैम वो जो फैन का स्पीड कम करने के लिए राउंड लगा रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, मैम वैसे ही स्विच बोर्ड में क्यों है? स्विच बोर्ड में मुझे तो इतना याद है कि आपको प्लग ऊपर नीचे करने के लिए एक है। मेरे को ये राउंड वाला मेरे को नहीं पता। प्लग रहता है कि उससे आप टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, चाहे वोल्टेज हाई हो नहीं। अब वो प्लग वाला मेरे को देखा, एक गाड़ी का वो
ब्रेकर जैसे रहता है एक लंबा, थोड़ा सा लंबा, उसको ऊपर नीचे करते हैं तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी टोटल आप अपने हिसाब से बंद ऑफ कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का काम कर रहे हो एक रूम में, आप चाहते हो कि उसको मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो, तो वो प्लग जो मेन प्लग है, मेन स्विच है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वो देखा मैंने, रेगुलेटर जैसा मैंने सर्कल वाला मेरे को याद दिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैम वो विनीत वो बोल रहे हैं जो फैन जिससे बढ़ाते हैं ना फैन की स्पीड। फैन की स्पीड बढ़ाते तो वो तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए है, वो तो कितना ज्यादा कितना नो मैम, तो कौन सा मैम वाला? वो एक रहता भी है। मैंने मैं सर्कुलर नहीं, आपको वीडियो ऑन करके दिखाऊं? मैम मैं सर्कुलर आपको दिखा रहा हूँ। मैम फोटो भेजो मेरे को, उसका क्या है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है व्हाट यू आर टेलिंग। मैम आपका नंबर भेज दो। हाँ वो क्या बोलते हैं, मेरा नंबर है ना, पार्श के पास है। तो ओके अभी दे दो ना। ओके, आई विल जस्ट ऐड इन द ग्रुप। ओके, क्लास 7 का। ओके ना जस्ट कम बैक टू द टॉपिक, अदरवाइज आज भी ये बच जाएगा टॉपिक। ओके, तो सीएफएल में जो है इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और हीटिंग इफेक्ट के कारण आप ये जो ट्यूब देखो, ये ट्यूब के अंदर एक कोटिंग चढ़ी है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग, जिनका काम क्या रहता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब जो रिफ्लेक्शन का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, बहुत ज्यादा चमक रोशनी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है, ये सीएफएल जो रहेगा, वो इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्लोरोसेंट जो कोटिंग है उसमें उसमें रिफ्लेक्शन होगा, और क्या होगा, आपका लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब सीएफएल का बस एक प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने के लिए। ओके, क्या बोलते हैं, ग्लो करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई और ड्रॉबैक नहीं है, और ये बल्ब के कंपैरिजन में ज्यादा चलता है। ओके, अब आईएसआई मार्क क्या होता है, आप ये बोल रहे थे ना, गीजर करके, ये है आईएसआई मार्क। बोल रही थी। या अब हर इंडिया में हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि आईएसआई मार्क होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह स्पेशली। अगर आईएसआई मार्क नहीं है तो इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड्स रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, मतलब ये इन लोग का, ये देखो यहाँ लिखा है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ओके, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैसे कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए, उसका मार्क क्या होना चाहिए। तो इक्विपमेंट में जब तक अगर ये आईएसआई मार्क नहीं होगा, मतलब वो सेफ नहीं है। Okay, so that's why whenever we are using the electrical equipments, we are seeing the ISI mark. Okay, next is the magnetic effect of electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हमने क्या किया, ये सर्किट बनाया। इस सर्किट में हमने क्या लगाया, ये कंपास लीड, मैग्नेट जो कंपास रहता है ना, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, वो वाला कंपास लगा दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई हुआ तो आप क्या देखोगे, इस कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन तभी होता है अगर वो कंपास को कोई मैग्नेटिक फील्ड मिले। ओके, ये कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होगा व्हेन यू विल सी एनी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट मींस व्हाट, अब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड ऑन दैट बेसिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर क्रिएट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक अ वायर, सॉरी एक मेटल लेना है, और उसको आपको क्या करना है, कॉइलिंग करनी है, उसके ऊपर ये वायर की कॉइलिंग करनी है, और उसको एक बैटरी से जोड़ दो, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करना शुरू कर देगा। ओके, अब ये जो है, इसके परमानेंट मैग्नेट से क्यों अलग है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है वो लॉन्ग लास्टिंग, वो हमेशा अपनी मैग्नेटिज्म शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, जैसे ही आपने करंट सप्लाई रोक दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम रोक देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड द परमानेंट मैग्नेट। ओके, एंड दिस आर यूज इन टॉयज, इक्विपमेंट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये सब बताया मैंने। हाँ, लिफ्ट में वो क्रेन जो आता है, क्रेन जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज करते हैं। ओके, अब लाइटनिंग एंड मैग्नेटिज्म, लाइटनिंग एंड मैग्नेटिज्म में क्या होगा कि व्हेन यू आर यूजिंग द लाइटनिंग एंड मैग्नेटिज्म, लाइट जब थंडर होता है, थंडर वो क्या बोलते हैं, बादल वगैरह गरजते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां पे हवा जो है ऊपर की ओर जाता रहता है, और पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। दो तरीके की चीज होती है, हवा, एयर इज मूविंग अपवर्ड्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर मूविंग डाउनवर्ड्स। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वहां पे चार्जेस क्रिएट, दो टाइप के चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, एक जमीन पे और एक
क्लाउड्स के सरफेस पे। दो टाइप की करंट जा रही है ना, एक आपका एयर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और वाटर जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो इस प्रोसेस के कारण देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस और बिटवीन द अर्थ एंड द क्लाउड। ओके, अर्थ और क्लाउड के बीच में सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, थंडर जो है, बिजली जो है वो नीचे गिरती है। ओके, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा और इसी कारण से लाइटनिंग होगा। और लाइटनिंग जो है, आप बोलोगे बिजली कड़क रही है, बिजली नीचे आ रही है, गिर रही है, वो इसी कारण से गिरती है। ओके, और ये जो बिजली है, ये क्या है, ऑल्सो बोलते हैं ना, बिजली जब गिरती है तो आप लोग लोहे का ऑब्जेक्ट वगैरह से दूर रहो, ऐसा क्योंकि लाइटनिंग जो इज ऑल्सो अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड एज आइडोस्टोन्स। यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है? इज इट क्लियर? आइडोस्टोन्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज नहीं समझ आया। थंडर। जो बिजली है, बिजली जब गिरती तो हमको बोला जाता है ना, बेटा पानी की जगह से दूर रहो, बिजली कड़कती है तो बोलते ना। यस और मैम। लोहे के खंभे के पास मत खड़े रहो, ऐसा बोलते ना, खंभे वगैरह के पास, इलेक्ट्रिकल खंभे के पास। तो क्यों? क्योंकि ये जो लाइटनिंग है, आपको ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये किसके, ये थंडर क्यों क्रिएट हो रहा है, ये थंडर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बिजली क्या करता है, ये अट्रैक्ट होता है किससे, ये जो लाइटनिंग है, ये जो बिजली जो गिरती है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे आपका ये कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिकल जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, जहाँ से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक का सप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि वो इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। वो क्या करता है, ये मैग्नेट का काम करता है, अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जहां जहां होगा, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता है ना, है कि नहीं? एक मैग्नेट Yes, दूसरे ma'am. मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए मैग्नेट, और धीरे से वो क्या करेगा, वो लाइटनिंग उसकी तरफ चला जाएगा। यानी कि लाइटनिंग जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है। अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता तो वो अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं होता। ओके, दैट्स व्हाई लाइटनिंग आल्सो मेक्स अ नेचुरल मैग्नेट एंड दे आर कॉल्ड एज आइडोस्टोन्स। यहाँ पे दिख रहा है, नाम लिखा, याद रखना Yes, इसको ma'am. एमसीक्यू के लिए। अब मैग्नेटिक इफेक्ट किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक बेल में भी आप देखोगे, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि ये पूरा एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक बेल है, इसमें गोंग लगा हुआ है, मेटल वायर है, बैटरी है, स्विच है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू करेगा। ये किससे, ये कॉइल से। ये कॉइल के जरिए जो है इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चालू होगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू होना, आपको पता है कि ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम शुरू करने का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हैमर जो कि किससे बना, आयरन से बना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो ये किससे जाकर टकरा जाएगा, ये गोंग से टकरा, डन डन डन, और साउंड विल बी कमिंग। जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाएगा और ये हैमर अट्रैक्ट नहीं होगा और बेल की आवाज नहीं आएगी। इज इट क्लियर? मैम यस, मैम मैंने सुना है मैम, एक जो थंडर आता है मैम, मैम वो बहुत पावरफुल रहता है मैम, कि एक साइड की बिजली ऐसे ही यूज हो जाएगी। तो पूरा पेड़ जला देगा तो सोचो कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कितनी